ख्याति Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are discussing chapter number 7, our natural resources, water and soil, and this is session number 2. So, in our previous session, we discussed regarding water as a natural resources, how is water important to us, how we can conserve it, what is conservation of water, different ways of conserving water. Then we also discussed regarding multi-purpose projects, etc. Correct? So now, in today's session, we will discuss regarding soil resource, types of soil. In that, we have alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil, desert soil, etc. And lastly, conservation of soil. So let us start today's session, kids. Okay. It is there in page number 307 in your textbook. Now, let us start with the chapter. Soil is an important natural resource. It is the top layer of the earth's surface in which plants and trees grow. Soil is very important and it is on the top layer of the earth's surface. Earth का जो surface है उसका top layer soil है. In this layer you can find that trees, plants etc. grow. आपने देखा होगा कि trees है, plants है, वो सब कहाँ पर grow होते हैं? Soil में. So topmost layer of the earth क्या है? Earth के सबसे ऊपर वाले layer में क्या हमें मिलेगा? Soil मिलेगा. Correct? And it is very important क्योंकि plants and trees अगर grow होंगे तो उनमें से हमें खाने पीने की चीजें, fruits, vegetables मिलेंगे. अगर plants नहीं grow होंगे तो we will not get all these things for eating. Now, soil is formed by the breaking up of rocks into smaller pieces due to the action of sun, rain and wind. ये soil कैसे बनती है? Soil ऐसे बनती है कि एक rock है. On that rock constantly if the sun's rays fall, the water fall when it rains, the wind blows heavily, all these actions of nature, it acts on that particular rock and slowly and gradually the rock breaks down and hence slowly soil is formed. The sun heats the rock and causes them to crack. Sun की जो heat है उसमें से ये रॉक जो है वो हीट हो जाता है. सन्स रेज causes heat. Correct? This rock will get heated up and when it heats up to an extent, what happens? It breaks down. क्रैक आ जाती है उसमें. ब्रेक हो जाता है, क्रैक आ जाती है उस पत्थर में. जब सन की हीट की वजह से वो पत्थर एकदम गर्म हो जाए तो उसमें क्रैक आ जाती है. Now, the rain beats against these cracked rocks and causes them to break into smaller pieces. Then, when the rain falls on these cracks, इन cracks के ऊपर जब rain water fall होता है, तब क्या होगा? तब इन cracks में और छोटे छोटे पीस हो जाएंगे उस rock के. It breaks them into smaller pieces. Fast wind scatters these pieces about. All this gradually breaks the rocks down into grains of soil. Then slowly and gradually when the heavy wind blows, what will happen? When it blows, it takes these small pieces along with it and it falls down, it gets rubbed away and small grains मतलब छोटे छोटे soil के particles बन जाते हैं. Fast flowing river then carry these grains as silt and deposit them along the banks as they flow towards the sea. Then when this soil, when it rains and the water flows, तो ये जब water flow होता है, rain होने के बाद water flow होता है, तो उस water के साथ जो है वो ये छोटे छोटे particles soil के उसके साथ flow होते हैं as a silt. Silt मैंने क्या बताया था? Small particles of soil that is carried down with the water. So ये silt जो है वो पानी अपने साथ बहाकर ले जाता है and it gets deposited on the banks of the river. River के जो banks है वहां पर ये deposit मतलब settle down हो जाते हैं, making that land very fertile. The entire process of
soil formation takes millions of years. जो ये मैंने entire process कहा कि the sun's heat will crack the rock, then when the water falls on it, the particles will become more smaller, then when the heavy wind blows, these particles will be carried away, then when it rains heavily and it starts flooding, when the water flows, this particle will move along with the water and then it will get deposited on the banks of the river. All these things, all these processes will take many millions of years. As rock contains different chemicals and minerals, the soil formed from these rocks also contain these substances. All rocks are not of same kind. हर एक rock same kind का नहीं होता है. हर एक rock के अंदर minerals and chemicals के contains different होते हैं. You might have observed some rocks are black, some rocks are bit white, some rocks are red in color. So why is this so? Because the chemicals and minerals present in the rocks are also different. Now, since they are different, the rocks, when they break down into soil, these soils are also of different type. तब ये soil भी अलग अलग type की बनती है, क्योंकि जिस रॉक में से ब्रेक डाउन होके ये सॉइल बनी है उसके केमिकल्स एंड मिनरल्स की वजह से सॉइल में अलग अलग टाइप्स हो जाती है. नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. These are the 6 types of soil which are found in India. Now starting with alluvial soil. Alluvial soil is the most fertile soil found in India. ये सबसे fertile soil है जो इंडिया में पाई जाती है. Which is it? Alluvial soil. It is mostly found in northern plains and coastal plains. ये कहाँ पर होती है? Northern plains and coastal plains में. And the delta region of West Bengal. वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा रीजन है वहां पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है. इट इज वेरी रिच इन ह्यूमस. इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है. व्हाट इज ह्यूमस? अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स एडेड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट ग्रो. डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि डेड लीव्स है, फ्रूट्स है, डेड प्लांट्स है, तो वो जो है उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस एक सब्सटेंस बनाया जाता है. फिर उसको ग्रोइंग प्लांट्स में फर्टिलाइजर की तरह, खतर की तरह डाला जाता है, तो उससे प्लांट्स अच्छे ग्रो होते हैं. सॉरी. ह्यूमस इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ डेड लीव्स एंड प्लांट्स विच मेक द सॉइल फर्टाइल एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर. और इससे प्लांट बेटर ग्रो होते हैं. किससे? ह्यूमस की वजह से. The variety of crops such as rice, wheat, maize, sugarcane, tobacco, cotton, jute, pulses and oil seeds grow well in alluvial soil. ये सारे के सारे चीजें जो मैंने बोली, राइस मतलब चावल, वीट गेहूं, मेज, देन sugarcane, tobacco, cotton, jute, pulses, oil seeds, ये सारे के सारे एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ब्लैक सॉइल. सेकेंड वन इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज डार्क इन कलर एंड इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक मेड ऑफ लावा. लावा मतलब क्या है? अर्थ के सरफेस के अंदर एकदम गर्म मोल्टन रॉक है. मोल्टन रॉक मतलब मेल्ट किया हुआ रॉक होता है. मेल्टेड रॉक लिक्विड फॉर्म में होता है ये रॉक. जैसे ही वो वोल्केनो इरप्ट होता है, कभी कभी अर्थ की जो प्लेट्स होती है वो जहां से थोड़ी लूज हो तो वो प्रेशर से बाहर निकल जाता है. आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर में जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो सीटी ऊपर हो जाती है और आवाज आती है. तो उसी तरह कोई भी गर्म चीज है तो उसका भी प्रेशर तो होगा. तो अर्थ के सरफेस के अंदर जो गर्म मोल्टन रॉक है वो एकदम गर्म है, तो इसका भी प्रेशर होगा क्योंकि ये गर्म है. तो वो प्रेशर
जो अर्थ का सरफेस है जहां पर भी उसे लूज थोड़ा सा टाइट बाउंड नहीं है, ऐसा लगे कि ये वीक है थोड़ा सा, तो उसको वो प्रेशर से ऊपर करता है और वो फिर ऊपर से एकदम माउंटेन जैसा बन के ऊपर से फट जाता है। जब वो फटता है तो उसमें से बाहर लावा निकलता है एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। वो लावा फ्लो होके गर्म जो है वो बाहर निकलता है। जैसे दूध गर्म होकर उभर कर ऊपर आता है, फिर वो पतीले में से बाहर निकल जाता है, वेसल में से बाहर निकल जाता है, उसी तरह ये गर्म मोल्टन रॉक जो है वो बाहर निकलता है एंड इट फ्लोज। इट इज कॉल्ड लावा। ये लावा जब कूल हो जाए, अर्थ के सरफेस पर आकर जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो ठंडा हो जाता है। करेक्ट। आप भी कोई भी गर्म चीज को ऐसे ही खुला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो वो भी ठंडी हो जाएगी। तो ये लावा जब कूल डाउन हो जाता है तो वो रॉक बन जाता है। और इस रॉक, जो ये लावा से रॉक बने हैं, उसके ब्रेकडाउन होने की वजह से जो सॉइल बनती है वो ब्लैक सॉइल है। कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल। इट इज फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में पाई जाती है। दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, व्हीट, शुगर केन एंड मिलेट। इन सारी चीजों के लिए ये सॉइल बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट रेड सॉइल। Red soil is found in the southern states of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. इन सारे स्टेट्स में रेड सॉइल पाई जाती है। It is also found in Maharashtra, Odisha, Jharkhand and northeastern states of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Meghalaya. ये सारी जगह पर ये रेड सॉइल पाई जाती है। द सॉइल इज रेड इन कलर एंड इज नॉट वेरी फर्टाइल। ये सॉइल रेड कलर की होती है और फर्टिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसमें बहुत अच्छे से कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होते हैं कुछ कुछ क्रॉप। सारे क्रॉप्स के लिए ये अच्छी सॉइल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट वेरी फर्टाइल। क्रॉप सच एज ग्राउंडनट, मिलेट एंड राइस कैन बी ग्रोन हियर। ग्राउंडनट, मिलेट या राइस यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन द एरियाज वेयर देयर इज हेवी रेनफॉल। जहां पर बहुत हेवी रेनफॉल होता है वहां पर लैटराइट सॉइल पाई जाती है। इट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड मेघालय। तमिलनाडु, केरला एंड मेघालय में ये लैटराइट सॉइल पाई जाती है। टी, कॉफी, रबर कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। ये सारी चीजें यहां पर ग्रो होती हैं। लैटराइट सॉइल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंट। ईंट बनाने के लिए भी ये लैटराइट सॉइल का यूज होता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट माउंटेन सॉइल। Mountain soil is found in the mountainous region of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Andhra Pradesh. Arunachal Pradesh. तो ये इन सारी जगहों पर ये माउंटेन सॉइल पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। Crops such as wheat, maize, barley, spices मतलब मसाले, tea and coffee and fruits such as apple are grown here. ये सारे की सारे चीजें यहाँ पर ग्रो होती है। नेक्स्ट लास्टली डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के डेजर्ट रीजन में पाई जाती है डेजर्ट सॉइल। So this soil is found in the desert region of Rajasthan and Gujarat where there is little rainfall. जहां पर बहुत कम बारिश होती है वहां पर ये सॉइल पाई जाती है। The soil is sandy and is not very fertile, but with the help of irrigation, crops such as wheat, millet, dates, barley, maize, pulses and cotton can be grown here. ये सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, बट जो कैनाल्स बनाते हैं, कैनाल्स की वजह से इरिगेशन के लिए पानी छोड़ा जाता है और उनसे इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। किन क्रॉप्स को?
crops such as wheat, millet, dates मतलब खजूर, barley, maize, pulses and cotton. ये सारी चीजें यहाँ पर ग्रो होती है डेजर्ट सॉइल में. तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल. नाउ लास्टली कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. हमने सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ा, कितनी टाइप्स के सॉइल होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स क्यों बने हैं ये भी हमने सीख लिया कि बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एज वेल. नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को क्यों कंजर्व करना है? डू यू थिंक? कैन यू थिंक? कैसे? क्यों? यस, as I told you earlier, soil is the topmost layer of the earth on which plants and trees grow. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि सॉइल अगर नहीं है तो प्लांट्स एंड ट्री ग्रो होंगे नहीं. प्लांट्स एंड ट्री नहीं ग्रो होंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? लिविंग थिंग्स जो प्लांट्स एंड ट्री पर डिपेंडेड है वो लोग क्या खाएंगे? सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. नाउ we all know the importance of soil. However, the topmost layer of the soil, which is usually the most fertile layer, gets carried away by the wind or rain, leading to soil erosion. Topmost layer of the soil जो है, topmost layer of the earth soil जो है, वो soil बहुत fertile होती है. But कभी कभी due to heavy rains when it floods, so this flood water will take away the soil along with it. That time it causes soil erosion. इससे soil erosion होता है. जो फ्लड का पानी है वो अपने साथ इस सॉइल को लेकर चला जाता है, बहाकर चला जाता है, तो इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. सेम वे when the wind blows, विंड एकदम स्ट्रॉन्ग विंड हेवीली ब्लो होती है तो उसके साथ भी कभी कभी सॉइल इट गेट्स कैरीड अवे, तब भी सॉइल इरोजन होता है. इरोजन is also caused by other factors such as cutting down of trees. इरोजन की एक वजह कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज भी है. आप ट्रीज को कट कर देते हो, करेक्ट, तब वो क्या होता है, दैट सॉइल विल बिकम वीक. वो सॉइल वीक हो जाती है क्योंकि जब तक ट्री है तो ट्री के रूट्स उस सॉइल को ग्रिप से इट होल्ड्स देम फर्मली, उस सॉइल को फर्मली होल्ड करके रखती है. मगर जैसे ही आप ट्री को निकाल दोगे तो क्या होगा, वो सॉइल वीक हो जाएगी, इट बिकम्स वीक एंड दैट्स व्हाई इट कॉजेस सॉइल इरोजन. उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. ओवरग्रेजिंग ऑफ द लैंड बाय डोमेस्टिक एनिमल्स is also harmful as it reduces the grass cover and leaves the soil exposed to wind and rain. ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या है, एक ही लैंड के पोर्शन में अगर आप बार बार अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग मतलब खाना खिलाने के लिए ले जाओगे, अपने पास शीप है, गोट है, तो क्या होगा कि उस सॉइल के ऊपर जो भी ग्रो होता है, ग्रास है या ट्री है या प्लांट है, तो वो उसे खा जाएंगे. अब वो खा जाएंगे तो फिर सॉइल में एक वीकनेस आ जाती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा क्योंकि उसके ऊपर अब ग्रास कवरिंग या प्लांट का कवरिंग ही नहीं है. इट बिकम्स एक्सपोज्ड टू विंड एंड रेन, तो वो एकदम विंड और रेन के लिए इजी हो जाएगा कि इसको सॉइल इरोजन कर देते हैं. The soil will get washed away. The soil erosion reduce the fertility of soil. Soil erosion की वजह से उस soil की, उस part of land की fertility भी कम हो जाती है. Hence we must conserve soil. इसलिए हमें soil को conserve करना है, बचाना है. We should plant more trees to ensure that trees are not cut down in large numbers. प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन ना हो. ओके, एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप. कटिंग डाउन स्टॉप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज को ग्रो करना है. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, फार्मर्स शुड यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स सच एज काउ डंग एंड कॉम्पोस्ट एंड प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है,
different crops are grown one after another on the same land, उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अगर आपको मेंटेन रखनी है तो नेचुरल फर्टिलाइजर, केमिकल वाले फर्टिलाइजर नहीं यूज करने चाहिए। फार्मर्स जो फर्टिलाइजर डालते हैं ना अपने फार्म्स में, करेक्ट, उन फील्ड्स में, तो वहां पर केमिकल वाले फर्टिलाइजर नहीं यूज करने हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे कि काउडंग है, कॉम्पोस्ट है। कॉम्पोस्ट का मतलब क्या है? A mix of rotting plants, kitchen waste and so on that is added to the soil to help plants grow well. आपके पास डेड प्लांट्स है तो उसके लीव्स है वो मिक्स कीजिए। फिर किचन वेस्ट मतलब आप जो खाना बनाने के लिए वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स सब निकालते हो और वो फेंक देते हो, तो उस वेस्ट को इकट्ठा कीजिए और उस वेस्ट को एक पिट में डालिए। उसको सारा फुल मिक्स करने के बाद उसमें से जो हमें कंपोस्ट बनता है, वो सब्सटेंस बनता है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं, उसे हमें फील्ड में डालना चाहिए क्योंकि वो नेचुरली बना है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। एंड वन मोर, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है? एक जमीन पर, एक फील्ड पर एवरी टाइम सेम क्रॉप नहीं ग्रो करने हैं, कीप चेंजिंग। उस चेंजेस की वजह से क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी। दीज प्रैक्टिसेस, विच प्रैक्टिसेस? दैट इज नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करना, क्रॉप रोटेशन करना, इन प्रैक्टिसेस की वजह से विल हेल्प टू कीप सॉइल फर्टाइल एंड प्रिजर्व द सॉइल कवर। तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी एंड सॉइल कवर मतलब soil का top layer of the earth, soil will be preserved. Okay, so here we come to the end of this chapter, and by ending this chapter I want to tell you one thing, that you have to read this full chapter once so that you will understand all the things better. अच्छे से समझ में आ जाएगा। There are some hard words which you can pronunciate. If you have difficulties, go through the video once again, then you will get to know the correct pronunciation. Correct pronunciation आपको आ जाएंगे। In my next session, I am going to discuss the exercise of this chapter. But before I start solving the exercise, if you read full chapter once, it will be much easier for you to answer all the questions by your own self. Along with this video, I am sending a PDF which is fill in the blanks based. You have to solve that yourself by looking into the textbook. Find the answers through videos or textbook. If you are still having difficulty, then discuss with your friends. So I hope you understood this chapter very nicely. So let me take your leave. Bye for now.